Hello students, welcome back and myself Chetna Upadhyay, and today I will not teach you science. From today I will teach you GK. Okay, the memory magic. It is your GK book. If you have this book, then take this your book, and you if and who's uh, do not have book, don't worry. I will tell you how will you do the your GK book GK work. Okay, so uh, from today I will teach you GK in science period. Okay, and when we and I will inform you when I'll start science. Okay, so I will take you two two subject, GK and science. Okay, so today we will start our GK, and the first chapter of GK is first let's see our book Memory Magic 6. It is your GK book. Okay, and it is your index. Okay, it is your index, the chapter name and all these things, and it is your first chapter. Okay, where in the world. Okay, there are some pictures are given. Okay, some animals pictures are given, and you have to match these pictures with the area. There is a world map. It is a world map. Okay, ये क्या है? ये अर्थ का ही मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है. द ऑल कंट्रीज आर इन दिस एरिया. ओके, so match the following animals with the countries or region where they are found. So you have to match these animals with their area where they found. Okay, so I hope you are familiar with the continent and oceans. So here we will see the continents or the other things, just like the biggest part which is looking, it is Asia. Okay, that is Europe. This is Africa. It is North America, South America. Okay, Australia, Arctic or Antarctica. There are 7 continents. So these animals are belongs to these continents or country. So let's see where our first animal is anaconda. Anaconda is a species of snake. ओके, ये स्नेक की एक स्पीसीज है. ओके, एंड इट इज़ फाउंड इन द अमेजन बेसिन. अमेजन बेसिन मीन्स कि आपकी नॉर्थ अमेरिका में एक रिवर वो है, आपका पूरा बहुत लंबा सा रेंज है. इट इज़ अ लॉन्गेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड. ये बहुत ही लंबा रेंज होता है. अमेज़न के जो पूरे जंगल होते हैं, आपने अमेज़न नाम सुना होगा, नॉट शॉपिंग साइट. इट इज़ अ अमेज़न जो आपका पूरा जंगल है और उसी में आपकी एक रिवर है, उसी बेसिन में ये एनाकोंडा सांप बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं. ओके, सो एनाकोंडा इज़ फाउंड इन द अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका. You can do the numbering and whether you can do a arrow, बट अगर आप नंबरिंग करोगे तो आपकी बुक थोड़ी क्लीन दिखेगी. वैसे मैंने दोनों आपको करके दिखाया हुआ है. ओके, तो डू एज यू डू, बट मेरे ख्याल से आपको नंबरिंग करना चाहिए, क्यों, थोड़ा सा आपका पेजेस क्लीन दिखे. ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच, यू नो द सहारा डिज़र्ट. सो ऑस्ट्रिच इज़ फाउंड इन सहारा डिज़र्ट. मतलब ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रिच किसी और देश में नहीं पाए जाते हैं, पर बहुत ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? सहारा में. सहारा इज़ इन अफ्रीका. ओके, पोलर बेयर वी नो दैट पोलर बेयर इज़ found in the cold region and the iceberg. So polar bear in Arctic. Okay, that is Kia. Kia is a bird. It is a belong to family of parrot. ये फैमिली मतलब पैरट की फैमिली से बिलोंग करती है, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है. ओके, किया फाउंड इन द न्यूजीलैंड.
Okay. Okay, Kia is a bird which is found in New Zealand. Okay, New Zealand. Next, panda. Panda is found in China. China is in the Asia. Okay, next, penguin. Okay, penguin is also found in the cold region where the ice are found and all these things. So penguin is found in the Antarctica region. Okay, one-horned rhino. One-horned rhino is found in India. Okay. ओके, सो वन हॉर्न राइनो मतलब कि राइनो जिसके यहाँ पे एक ही सींग होती है. वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट, मैक्यू मंकी इज फाउंड इन जापान. नेक्स्ट, बैक्टीरियन कैमल इज फाउंड इन मंगोलिया. Okay, it is found in Mongolia. And kangaroo, we know that kangaroo is found in Australia because जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है उनको भी हम लोग कंगारू ही मतलब जो आपने कभी कमेंट्री सुनी हो तो उसमें उन लोग कंगारू बोल देते हैं उन लोगों को. और ऑस्ट्रेलिया का ये नेशनल एनिमल भी है कंगारू. सो आई होप यू हैव लर्न ऑल दिस थिंग. सो and if you have book, please go thoroughly and don't forget to read these facts. Okay, these facts. Polar bear is the world's largest meat eating animal. Okay, so polar bear is the world's largest meat eating animal means carnivorous. मतलब पोलर बेयर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्निवोरस एनिमल है. ओके, नेक्स्ट, मेल मंकीज गो बाल्ड इन द सेम वेज एज मेल ह्यूमन बीइंग डू. मीन्स कि मेल मंकी भी वैसे ही बाल्ड होते हैं. बाल्ड मीन्स आई होप यू नो दैट बाल्ड मीन्स टकला होना. ओके, सो मेल मंकीज़ भी वैसे ही बाल्ड होते हैं जैसे कि ह्यूमन्स में मेन होते हैं. ओके, आपने ये देखा होगा कि अक्सर लड़कों के बाल जल्दी झड़ जाते हैं जबकि लड़कियों के नहीं होते. वो टकली, कभी भी आपने किसी लड़की को टकला नहीं देखा होगा कभी भी. ओके, वैसे ही इसमें मंकी में भी मेल मंकी के बाल गिर जाते हैं और फीमेल मंकी के नहीं गिरते हैं. ओके, सो इफ़ यू हैव अ बुक, do these exercises in your book with pencil. Don't use pen in your book. Okay, and आप नंबरिंग ही करना, एरो मत बनाना, उससे आपकी बुक गंदी होगी. सो प्लीज़ डू नंबरिंग. एंड इफ़ यू डोंट हैव बुक, ओके, इफ़ यू डोंट हैव बुक, do this exercise in your copy like this. Okay, make a separate copy if you don't have a book. अगर आपके पास बुक नहीं है और जब तक आपके पास बुक अवेलेबल नहीं होती है तब तक आप क्या कर सकते हो कि आप जीके के काम को एक कॉपी में लिख सकते हो. एक पतली सी जीके की कॉपी बना लो और वो उसमें ये काम कर सकते हैं. ऐसे लेसन फर्स्ट आप यहाँ पे लेसन 1 डाल दो. ओके, मैंने थोड़ा सा बीच में लिख दिया है बट आप किनारे लिखना लेसन 1. ओके, लेसन 1 वेयर इन द वर्ल्ड, और ऐसे ही आप पूरा लिख लो. ओके, इससे आपका क्या होगा कि आपके पास वर्क लर्न करने का नहीं रहेगा कि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ. अरे यार, ये स्टार्टिंग आपका ये नहीं होगा कि आपने काम ही नहीं हो पाया है. और ये ऐसा नहीं है कि सबको कॉपी बनानी है, सबको कॉपी नहीं बनानी है. जिनके पास बुक है वो बुक में काम करेंगे और जिनके पास बुक नहीं है सिर्फ वो कॉपी बनाएंगे. ओके, so from today be ready with your GK book. Okay, so till then, thank you.